नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6th Sem and others course pedagogy of civics from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today our lesson is remedial teaching. We discuss both language, English and Hindi. First in English and after Hindi. Let's see in English. We discuss first of all introduction. Students who have temporarily fallen behind in their studies or was need short-term support in their learning have the right to get remedial teaching. Remedial teaching should be started immediately when the difficulties in learning or school attendance have been noticed so that the students would not stay behind permanently in their studies. Remedial teachings can counteract difficulties beforehand. Remedial teaching should be organized according to a plan and as often as is necessary. Characteristic to remedial teaching are individual plan. First, tasks. Second, time management. Third, guidance. Diverse methods and materials are used in remedial teachings, with which new ways can be found to approach the subject that is to be learned. In proactive remedial teaching, the new things that are to be learned are introduced beforehand. Remedial teaching can also answer the need for support that arises from absences. Schoolwork is planned in such a way that every student has a possibility to participate in remedial teaching if need be. Remedial teaching is given either during the lessons to which the need for support is connected or outside lessons. Various flexible groups are used in remedial teaching. The initiative about giving remedial teaching is primarily done by the teacher. It can also be done by the student or guardian. The task of each teacher is to monitor the learning and growth of the student and the possible needs for support that may arise. Remedial teaching is organized uh, in mutual understanding with the student and the guardian. They will be given
information about the forms of remedial support and its importance to learning and school attendance. Students are obligated to participate in the remedial teaching that has been organized for them. Remedial teaching is given at all level of support. This session prepared by Digital Version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। लेट्स सी इन हिंदी। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है सेशन उसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की। जो विद्यार्थी अस्थायी रूप से अपनी पढ़ाई में पीछे रह गए हैं या उनके सीखने में अल्पकालिक समर्थन की आवश्यकता है, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण तुरंत शुरू किया जाना चाहिए जब सीखने या स्कूल में उपस्थिति में कठिनाइयों को देखा गया हो, ताकि छात्र या विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में स्थायी रूप से पीछे न रह जाएं। उपचारात्मक शिक्षण पहले से कठिनाइयों का सामना करता है। उपचारात्मक शिक्षण को एक योजना के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए और जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार इसको किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता व्यक्तिगत रूप से नियोजित होती हैं। इसमें पहला कार्य, समय प्रबंधन और मार्गदर्शन तीसरा। उपचारात्मक शिक्षण में विविध विधियों और सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा उस विषय को सीखने के लिए नए तरीके खोजे जा सकें जिन्हें सीखना है। सक्रिय उपचारात्मक शिक्षण में जिन नई चीज़ों को सीखना है उन्हें पहले से पेश किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण भी अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाले समर्थन की आवश्यकता का उत्तर दे सकता है। स्कूल वर्क की योजना इस तरह से बनाई गई, यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने की संभावना है। उपचारात्मक शिक्षण या तो दिया जाता है उन पाठों के दौरान जिनसे समर्थन की आवश्यकता होती है या बाहर के पाठ हों। उपचारात्मक शिक्षण में विभिन्न लचीले समूहों का उपयोग किया जाता है। इस शिक्षण के बारे में पहल मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा की जाती है। यह विद्यार्थी या अभिभावक द्वारा भी किया जा सकता है। प्रत्येक शिक्षक का कार्य है छात्र के सीखने और विकास तथा समर्थन के लिए संभावित आवश्यकताओं की निगरानी करना है जो उत्पन्न हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी और अभिभावक के साथ आपसी समझ में आयोजित किया जाता है। उन्हें उपचारात्मक समर्थन के रूपों और सीखने तथा स्कूल में उपस्थिति के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। विद्यार्थियों को उनके लिए आयोजित किए गए उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने के लिए बाधित किया जाता है, फोर्सली कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण समर्थन के सभी स्तरों पर दिया जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन था वो उपचारात्मक शिक्षण मतलब रेमेडियल टीचिंग, और आगे के सेशंस में आप आगे की बातें देखते जाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।